Yes, rotational motion doubts from the booklet or the PDF. Question bank. Most of it we have already discussed in the last session. उसके अलावा अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज आस्क. Yes, tell me please. The B14. B for Bombay. Yes, sir. Okay. B14. Yes. So mass is distributed over a length L. Linear mass density is lambda equals to kx. Moment of inertia about the left hand. So this simply at a distance x, you'll have to just take an element of width dx. और इसका मास हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर. और बस अभी इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा. फिर लैम्डा इज के एक्स, सो के इंटू एक्स क्यूब डी एक्स 0 to L. ओके. एंड I'll get the value in terms of k and l. और m के टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए मास का जो एक्सप्रेशन है इंटीग्रल लैम्डा डी एक्स 0 to L करना होगा. लैम्डा इज अगेन के एक्स, सो इट इज k इंटीग्रल एक्स डी एक्स. See if you're clear with this. Yes, sir. Okay, next. The C6. C6, in case of a torque of a couple, if the axis is changed by displacing itself parallel to each other, then the torque will remain constant. ठीक है ना? So question नहीं समझा. So here example अगर ऐसा लें कि ऐसा दो equal opposite force act कर रहा है at a distance d. What is the couple constituted F into d? About this point अगर सोचे तो F into d couple है. ठीक है ना? और अगर मिड पॉइंट ऑफ द रॉड के अबाउट में सोचूं तो एक L/2 हो गया और एक L/2 माइनस डी हो गया perpendicular distance. This was F into d in the clockwise sense, right? Now if I write on the torque about the point O, right? Torque about the point O अगर लिखते हैं तो it will be what? F into L by 2 minus F into L by 2 minus D. तो क्या बचा? F into D बचा. ठीक है ना? तो अबाउट द इनिशियल पॉइंट जो कपल था वही अबाउट द पॉइंट ओ भी है. ओके. Torque of a couple if you change the axis, keeping the axis parallel to itself. Okay. The initial axis C and the new axis O are parallel to each other. The torque remains unaffected, so to say. Okay. Yes, sir. और बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन. The E6. डी में और कुछ? ई. E6 two men support. One of them, let's go the force. ये तो डिस्कस किए थे यार. डिक्रीज हो जाता है वो हिंज वाला प्रॉब्लम जो अपन क्लास में डिस्कस किए थे वीडियो लेक्चर में, वही तो है. एक साइड हिंज और एक साइड स्ट्रिंग है. Now if you cut the string, then what will happen? ये जो reaction mg/2 था, that will decrease. This was initially mg/2, tension was mg/2. That is how the weight was being balanced. Now the moment you cut the string, the hinge reaction will become what? mg/4, because now the body starts accelerating down. So the force from the other end decreases. Okay, ऐसा नहीं है कि राइट हैंड साइड का भी वो लोड लेने लग जाएगा. वो अपना लोड, वो भी अपना लोड कुछ कम कर लिया. Why? Because now the body is not in equilibrium anymore. Okay. Next. Work it out. The G13. F में No, sir.
Okay, G13. Plank of mass m is placed over a smooth incline and a sphere is also placed over the plank. Friction is sufficient. Friction का direction यहाँ पे पूछा है on the sphere. Friction का direction will be up the incline. Question incomplete है. Friction का direction would be up the incline. और बोलो. आंसर 0 है. नहीं फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन अगर इस पे पूछा है स्फीयर पे तो इट विल बी अप द इंक्लाइन तभी उसको रोटेशन मिलेगा. क्वेश्चन एक्चुअली इनकम्प्लीट है. अ, इसके ऊपर तो फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन एक्ट कराना ही होगा तभी उसको रिक्वायर्ड टॉर्क मिलेगा सो दैट इट कैन डू अ प्योर रोलिंग. ठीक है ना. फ्रिक्शन इज सफिशिएंट बिटवीन द प्लैंक एंड द स्फीयर और ये एम जी साइन थीटा है और इसके ऊपर भी फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइन है. सो दिस इज एक्सेलरेटिंग डाउन. यस सर. दिस विल एक्सेलरेट डाउन विद एम जी साइन थीटा और प्लस एफ हो गया divided by the mass. This will accelerate down with mg sin theta minus f by the mass हुआ और इस पॉइंट के लिए a1 और a2 को इक्वेट करना होगा. a1 and a2 must be equal. So if I assume that the friction is not acting, uh, if the friction is not acting, then both the bodies will just have a pure translation motion down the incline with g sin theta. और अगर फ्रिक्शन एक्ट करना स्टार्ट कर दे रहा है तो फिर फ्रिक्शन को ऐसा एक्ट करना होगा तो इसका acceleration of the sphere will become less than the acceleration of the plank. हाँ इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि since they are already undergoing since there is no slipping initially without friction so there is no reason why the friction would act. ऐसा argument yes we can do कि you know both the bodies are accelerating down with g sin theta without the friction acting. ठीक है ना. तो आई कैन से कि ये पॉइंट और ए और ये पॉइंट बी में कोई स्लिपिंग है ही नहीं. तो अगर कोई स्लिपिंग है ही नहीं तो फ्रिक्शन एक्टिंग विल बी जीरो ओनली क्योंकि फ्रिक्शन के अपीयरेंस के कारण द बॉडी दे विल बी स्लिपिंग विद स्टार्ट्स. क्योंकि इफ आई अज्यूम दैट ऑन द स्फीयर द फ्रिक्शन इज एक्टिंग अप द इंक्लाइन देन अल्फा विल बी एज सच. ठीक है ना. तो दिस पॉइंट विल हैव एन एक्सेलरेशन a माइनस आर अल्फा. ठीक है ना. and this will have an acceleration mg which will be greater than a minus r alpha. तो फिर प्योर रोलिंग नहीं होगा. तो since pure rolling नहीं हो रहा है then the friction will unnecessarily not act because यहाँ पर at least pure translation में there is no slipping. Okay, the motion is a pure translation and there is no slipping. Okay, friction अगर act करता तो acceleration of A and acceleration of B equal नहीं होता and so there would be no pure rolling. Pure rolling would not occur. ठीक है. So already there was no slip and so I can say that there is no reason why the friction would act in this case. So this argument is concluded. Next. So from the true false up page, the question 15. Comprehension के बाद. Yes sir. Okay, yes. Which one? The 3, part 3. Net torque on a system due to all internal forces. Net torque on a system due to all internal forces is zero about any point is zero.
नेट टॉर्क ऑन अ सिस्टम, हाँ तो इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस हो गया है ना। एफ और माइनस एफ फोर्स है तो कोई भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेंगे तो एफ इंटू आर और माइनस एफ इंटू आर ओके जीरो हो जाएगा। ओके। So, 15 part 3 का question number 2. For a rigid body undergoing phase acceleration. Direction of its angular acceleration and angular velocity are always same। नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, एक प्लस जे हो सकता है एक माइनस जे हो सकता है, ठीक है। अगर स्लो डाउन हो रहा है ओमेगा अल्फा इन ऑपोजिट डायरेक्शन इफ द बॉडी स्लोज डाउन। Sir, जो part पे उसका question part 1 से कुछ connection नहीं है कि मैंने एक साथ दिया है और part 1 में लिखा हुआ already answer true है। नहीं नहीं अलग ही है, कोई ऐसा कनेक्शन नहीं दिखता। Okay। Yes, sir. और बोलो नेक्स्ट। And so question in the, on part 5 should be true, right? Because all the particles will have acceleration omega square r. Ring is rolling without sliding on a fixed surface. The centripetal acceleration of each particle with respect to the center of the ring is the same। Ring is rolling without sliding on a fixed surface। Centripetal acceleration of each particle। अब ये रिंग यूनिफॉर्म अगर नहीं है तब फिर सेंटर ऑफ मास की तरफ पॉइंट करना चाहिए, राइट। सो अगर यूनिफॉर्म रिंग है देन यस यू कैन से इट इज ट्रू। ओके। Okay, yes, sir. And so the fill in the blanks part 3, sir. I think question is incomplete. So, समझ नहीं आ रहा था question. Uniform cube of side length A mass M rest on horizontal table at horizontal force F is applied normal to one of the faces and directly below the center of the face, one of the faces at a point that is directly below the center of the face, ठीक है, at a height a/4 from the base। Find the minimum value of F for which the cube begins to tilt about the edge। हाँ तो ठीक है ना, ऐसा हो गया, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, राइट। This is the scenario। Okay। Center of mass is at a/2, this is at a/4। तो बॉडी जस्ट नॉर्मल फोर्स शिफ्ट होकर राइट में एक्ट करना लग जाएगा, राइट। तो आई कैन से दैट एट क्रिटिकल पॉइंट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट अगर जीरो करते हैं, ओके, तो एम जी इंटू a/2 विल बी इक्वल्स टू एफ इंटू a/4। यहाँ से आ जाएगा टॉर्क अबाउट पॉइंट टू अगर कैलकुलेट करते हैं। ऑल दी अदर पॉइंट्स हैव लेफ्ट कॉन्टैक्ट, नॉर्मल राइट में शिफ्ट हो गया और फ्रिक्शन भी ओ से ऐड कर रहा है, दोनों का टॉर्क जीरो हो गया, तो सिर्फ एम जी और एफ का टॉर्क बचा। तो टॉर्क अबाउट ओ इज जस्ट इक्वल टू जीरो। ओके नेक्स्ट। The question, exercise 2 का question 12. Question number 12। दो सिलेंडर है रोलिंग डाउन एंड एंगल थीटा हाइट एच। A is a hollow cylinder and B is a solid cylinder। Find the distance between the two cylinders when one of them reaches the bottom। ये तो किए थे ना अपन यार। Hollow cylinder will have to be treated like a what, ring, and solid cylinder will have to be treated like a disc। तो दोनों का मेरे को एक्सेलरेशन का वैल्यू पता है, तो बाय द टाइम वन रीचेस द ग्राउंड दूसरा और कोई हाइट पे रहेगा तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना। ओके एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला यूज करते हैं अगर याद है तो? G sin theta by 1 plus ICM by MR square। Yes, by k plus 1 where k is I by mr square, ठीक है ना।
तो Yes, दिस इज yes. द एक्सेलरेशन, तो आई कैन फाइंड आउट कि कितना टाइम लगेगा एक बॉडी को पहुंचने में, द वन विच इज हैविंग अ ग्रेटर एक्सेलरेशन, तो उतना टाइम में दूसरा का कितना पहुंचेगा वो पता चल जाएगा, तो फिर दोनों के बीच का सेपरेशन निकाल लेंगे. ओके, नेक्स्ट. Yes, sir. The question Next. 14. हाँ 14 को ये कोई फॉरवर्ड किया था ना इसमें ग्रुप पे. दस प्योर ट्रांसलेशन अगर चाहिए तो द एक्सटर्नल फोर्स मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास. इसका सेंटर ऑफ मास इधर पे होगा, या इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, तो नेट सेंटर ऑफ मास विल बी समवेयर एट द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स. ठीक है, तो ये मास 2m है और ये मास m है, तो सेंटर ऑफ मास विल बी एट द ट्राइसेक्शन पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड दिस शुड पास थ्रू द फोर्स मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास. देखो समझ में आ रहा है ना? सर हम इसको एक अलग तरीका से किया था. बता. सर हम लिया था कि दोनों का जो रॉड पे फ्रिक्शन लगेगा वो उसका टॉर्क 0 हो जाएगा. दोनों फ्रिक्शन जो लगेगा, फ्रिक्शन नीचे वाले पे F लगेगा और ऊपर वाले में 2F लगेगा. ठीक है, लेफ्ट में मार्क किया तो फ्रिक्शन उसको तो. टॉर्क. हाँ सर. अच्छा, फिर और नेट टॉर्क 0 किया अबाउट सेंटर ऑफ मास. हाँ सर, वो जहाँ पे वो स्ट्रिंग का टेंशन अप्लाई होगा. जहाँ पे स्ट्रिंग का टेंशन अप्लाई हो रहा है वहाँ पे उस पॉइंट का टॉर्क, फोर्स का टॉर्क 0 होगा, और इन दोनों फोर्सेस का टॉर्क अगर बैलेंस होगा तब नेट टॉर्क 0 होगा. कर सकते हैं, हाँ सर. कर सकते हैं, नॉट बैड, ऐसा भी कर सकते हैं. ठीक है, बट ये वाला मैं बोथ आर इक्वली गुड, कोई मैंने बोथ आर, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें भी है उसमें भी है, दोनों में कैलकुलेशन है. ओके, तो यू कैन फाइंड आउट द ट्राइसेक्शन पॉइंट एंड यू कैन गेट द आंसर. ट्राइसेक्शन पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ मास, और जो फोर्स है वो उधर से पास करना चाहिए. गो थ्रू इट प्लीज. हाँ सर, ऐसे ही कर रहा था, कैलकुलेशन नहीं पा रहा था. कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा था यार. दिस इज L by 2. This angle will be pi minus alpha. This is 90 minus pi minus alpha. सेंटर ऑफ मास अगर ट्राई सेक्शन पॉइंट पे है तो ये वाला लेंथ पता चल जाएगा. दिस विल बी हाउ मच, अंडर रूट ऑफ, कैलकुलेट करो इसको क्या आ रहा है. द टोटल लेंथ इज अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस L by 2 का स्क्वायर, रूट 5L by 5 स्क्वायर बाई 4 आ गया, तो रूट 5 इंटू L by 2 आ गया ये वाला टोटल लेंथ. ठीक है, तो आई कैन फाइंड आउट दिस एंगल थीटा. तो tan थीटा आ गया, एंड हाँ, तो फिर बस ये वाला लेंथ निकाल लो. ये दिस विल बी 1/3 ऑफ दिस लेंथ, 1/3 ऑफ रूट 5L by 3 है ना. हाँ और सर, फिर मिल गया. यहाँ पर वो कोसाइन एंगल, कोसाइन वाला जो फॉर्मूला होता है वो सब लगा लो. और सर फ्रिक्शन वाला से डायरेक्ट आंसर. फ्रिक्शन वाला से क्या है, डायरेक्ट आ रहा था वो, तो क्या आ रहा है यार, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे और फिर सर इक्वेट कर. tan इनवर्स, सर tan थीटा, सर उसमें tan थीटा इक्वल्स टू 1/4 आ रहा था, -1/4. ओके, मे बी, हाँ ठीक है. इसमें भी इससे डायरेक्टली आ जाता है, मतलब कुछ तो मैं मिस कर रहा हूँ. सेंटर ऑफ मास वाला फंडा. एनीवेज, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट. सर 16 में एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व होना चाहिए, कोई बाहर से फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे.
The large cylinder is initially rotating clockwise. Small cylinder is moved to the right until the large cylinder touches it. नहीं यार, हिंज रिएक्शन है ना, तो हिंज रिएक्शन का टॉर्क होगा, ऐसा है, ठीक है ना. One is rotating with an angular velocity omega naught, the other is at rest, probably is it. ये ओमेगा नॉट से घूम रहे हैं और ये इनिशियली रेस्ट पे, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन अपवर्ड्स, इसके ऊपर फ्रिक्शन डाउनवर्ड्स, इसके ऊपर हिंज रिएक्शन अपवर्ड्स, इसके ऊपर हिंज रिएक्शन डाउनवर्ड्स. ओके, तो बिकॉज ऑफ द हिंज रिएक्शन द टॉर्क इज द एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड. हिंज रिएक्शन का टॉर्क, कोई भी पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट लेंगे तो, या ये वाला, ये कोई भी पॉइंट लेंगे, द टॉर्क इज नॉन जीरो, एंड सो द एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड. ओके, Okay. तो इसको इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन से सॉल्व करना होगा. Yes, sir. F into r1 dt, f into r1 is the torque into the time is equals to I into omega find minus omega initial, वो सभी क्वेश्चन करते हैं. फाइन, नेक्स्ट और बोलो. And so question 17 समझ नहीं आया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो जहाँ से मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही सेंटर ऑफ मास होगा यार. डी बाई डी एक्स करके जीरो करना है, ठीक है ना. आई वर्सेस एक्स का ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, जहाँ पर मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज द सेंटर ऑफ मास पॉइंट. तो इस पॉइंट पे स्लोप जीरो होगा ना, टेंजेंट पे, डी आई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो. नेक्स्ट, Yes, sir. और कोई डाउट इसमें? ठीक है, लेट्स गो टू डीसीपी देन. Okay, I'll share the doubts. Arya has forwarded a few doubts. You can just go through them. Yeah. Yes. I'll share it on the board. देख पा रहे हो सर? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Question number 22. ABC is a triangular framework of three rods of mass m, length 2l. It is free to rotate about its own plane, in its own plane about a smooth axis through A, which is perpendicular to ABC. If it is released, then AB is horizontal and C is above B. Okay. AB is horizontal and C is above B. ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, ये A, ये B, ये C. तीन रॉड्स है और ये कॉन्फ़िगरेशन से उसको रिलीज किया गया, एंड इट इज हिंज्ड अबाउट इट, राइट. फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ C इन द सब्सिक्वेंट मोशन. मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ C इन द सब्सिक्वेंट मोशन निकालना है. तो जब ओमेगा मैक्सिमम होगा तब वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट C मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है. इट अबाउट द पॉइंट A, इट इज अंडरगोइंग द प्योर रोटेशन. तो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कब होगा? व्हेन द सेंटर ऑफ मास इज सबसे नीचे वाले पोर्शन पे जाए सेंटर ऑफ मास. देखो समझ में आ रहा है? So when the center of mass is right below, it will be in some configuration like this. This is the position जहाँ पर center of mass is at the lowest position, right below the hinge. Center of mass is right below the hinge. मतलब जो centroid है equilateral triangle का, that should be right below the hinge.
See if you're able to understand this. Yes, sir. Okay, so I can find out the loss in height of the center of mass. तो ये h/3 होता है और ये 2h/3 होता है ना. Yes, sir. Centroid is the trisection point. So total center of mass कितना height है नीचे गया, h नीचे गया, h/3 above से 2h/3 below. So mgh, where h is the height of this triangle, which is √3a/2 होता है, is equals to half I omega square. 3m लिख दो, three rods are there. Okay, is equals to half I omega square. And I can be written for this as ml²/3, ml²/3 for the two rods which are connected to A. And for the third rod, it is ml²/3 plus this distance h, mh square. Will be twice of ml²/3 plus of ml²/12 plus of mh square. है ना. तो यहाँ से ओमेगा आ गया. Once you get omega, I can write down the velocity of omega into r. R is L over here. This is the point C. इसका velocity ऐसा होगा. About A, it is a pure rotation. Okay, so omega into R. Okay. Yes, sir. Okay, next question number 18. Yes, sir. 18 and 19. Horizontal plank of mass m lies on a smooth horizontal surface, a sphere of same mass, radius r, frequency omega naught, and gently placed. If the coefficient friction is mu, find the distance moved by the plank till the sphere starts pure rolling. The plank is longer. So simple here. Friction will be acting on the sphere rightwards. And so on the plank, its reaction will be leftwards, right? So this the plank will get an acceleration in the leftward direction, and the sphere will get an acceleration in the rightward direction. Okay, and it will also get a alpha. Okay, there will be an alpha in what sense? There will be an alpha in the opposite sense. Omega clockwise है, alpha anti-clockwise है. देखो यहाँ तक समझ में आ रहा है. Initial angular velocity was clockwise. It gets an alpha in the anti-clockwise sense because of the torque of friction. Hello. म्यूट कर लो अगर कुछ बोलने का नहीं है तो प्लीज म्यूट योरसेल्फ. अंजलि प्लीज म्यूट योरसेल्फ. बैकग्राउंड में नॉइज है तो प्लीज म्यूट करो, और कुछ बोलना है तो अनम्यूट करके बोलो और फिर म्यूट कर लो. Okay, so this is the diagram. Are we clear with the forces acting? ठीक है. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लेफ्टवर्ड स्लिप कर रहा है तो फ्रिक्शन उसके ऊपर राइटवर्ड मार्क किया, उसका रिएक्शन प्लैंक के ऊपर लेफ्टवर्ड्स, and it is the ground is offering no friction because it is smooth. So this point the plank will accelerate left, the sphere will accelerate right, and you have to find out the distance moved by the plank till it starts pure rolling, right? So finally when it starts pure rolling at time t, I can say कि plank का velocity क्या हो चुका होगा, a1t, and the disk would have a velocity a2t, right? And if it has an angular acceleration omega, omega can be written as omega naught minus alpha t. Yes, sir. Then what will be the connecting equation between them? Point A और B का velocity equate करना मुझे, है ना? No, sir. Velocity of point A and velocity of point B I'll have to equate. So I can write down the equation as a1 into t is equals to omega naught minus alpha t into r. This is the leftward velocity, and the rightward component will be at minus a2t. This is a2. Okay. So couldn't understand this one. Net velocity of A and B must be equal. Okay, when the system the slipping stops sir. here, the velocity of B is this much, and this is velocity of A. Yes. Velocity of A को मैं क्या लिखा? Omega r minus Vc. ठीक है ना? Yes. Okay. Fine. Next question. अच्छा 19. A ball rolls without sliding over a rough horizontal surface with a velocity 7 meters per second. And then restitution is 0.7. Calculate the velocity v of the ball long time after collision.
हाँ तो प्योर रोलिंग हो रहा था तो आई कैन से कि इट कोलाइड एंड इट rebounds with a speed of 7 v naught in the leftward direction, but the angular velocity remains omega naught. Okay, and so ये वाला point में leftward slipping आ गया after the collision with the wall. This is the wall, let's see. Is 0.7, sorry, so 0.7 v naught will be the velocity with which it rebounds. Right, omega remains as it is, Yes, sir. and so See, this point is elastic only. leftwards, and so the friction will be in the rightward direction. Okay, friction will be in the rightward direction. Yes, sir. Friction will reduce the velocity and reduce omega. Okay, and you have to find out the velocity long time after the collision. So I can just conserve the angular momentum. क्योंकि v निकालना है सिर्फ, so I can just conserve angular momentum about an earth fixed point A. Why? Because the friction in the entire journey will be passing through the point A, and so the torque about A will be 0. And finally, if the velocity is v and the angular velocity is omega, I can say that pure rolling हो रहा है तो v equals to omega r होना चाहिए. So I'll just conserve the angular momentum. Initial angular momentum about A just after collision is equals to final angular momentum of about the point A after a long time when pure rolling starts. Okay, and this is just after collision. Initial means just after collision. तो initial angular momentum का क्या equation लिख सकते हैं? R cross MECM plus ICM omega. Okay, so R cross V will be in the outward direction and omega is in ICM omega is in the inward direction. So this will come out as 0.7 m into 0.7 v naught into r. R cross V कर रहे हैं. Okay, that is in the outward direction. Minus ICM into omega. This is the initial angular momentum. Final angular momentum का क्या expression होगा? MVR outwards plus I omega outwards. Equate कर देंगे. And omega can be replaced as V by R. I'll get it. Okay. Yes, sir. Angular momentum conservation about an earth fixed point in cases where the only external force is friction works very well. Okay, when the only external force is friction, angular momentum conservation about earth fixed point is the best thing. Okay, fine. Yes. Let's move forward. Next question. So 28. 28. Plank is lying on the top. Force F is applied such that the plank moves and causes the cylinder to pure roll. There's no slipping. You have to calculate the acceleration of the cylinder and the friction forces. Simple, use standard questions here. Friction sphere के ऊपर ऐसा लगना चाहिए mostly because only then it will undergo a pure rolling motion sort of a thing. यहाँ पर friction F2 ऐसा लग रहा है. ये F1 का reaction on the plank is leftwards. Leftward. So now what will be the equation? F cos theta minus F1 is equals to m into A1. ये पहला equation हो गया for the plank. Okay. Now for the sphere, what will be the equation? F1 minus F2 is equals to m into A2. And torque equation will be F1 into R plus F2 into R is equals to ICM into alpha. Now for pure rolling, what is the idea? There should be no slipping at this point. There should be no slipping at this point. For no slipping here, the condition will be A2 is equals to R alpha. And for no slipping there, what will be the equation? A1 equals. A1 must be equals to what? A2 plus R alpha. Topmost point का total acceleration will be in the A2 plus condition R that alpha. will be A2 plus R alpha. And since A2 is equals to R alpha, you can also write it as 2A2 if you want. So these are the 5 equations. Go through it, please. Yes, sir. Okay. From this you can find out whatever you want. Next. So 39 was solved. Yes, sir. हो गया था solve? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. ये सिंपल स्टैंडर्ड चीज है, ये याद रख सकते हो सब लोग कि हाँ सर, लोकस के लिए थोड़ा हाँ, कंफ्यूजन हो गया था हाँ, वो. center of mass is moving in a straight line in all such problems. जहाँ पर frictionless surface है तो center of mass तो straight line में fall कर रहा है. And if you look at the L/4 mark, it will be moving in a circle. Yes. Okay, ये जो distance है ये L/4 है. This will be undergoing a circular motion.
and this will be undergoing a straight line motion. Other points will be undergoing elliptical motion. Other points will move in an ellipse. What is ellipse? That you can learn when you do that in your. Fine. Next question. Say it. A disk of radius r, mass m is projected on a horizontal floor with a backward spin, such that the center of mass has a velocity v0 and angular velocity is omega naught. What must be the minimum value of omega naught so that it returns? Backspin मतलब ऐसा है ना, और ये v0 है. So if I want this body to return back, तो क्या condition होगा? The body must stop its translation first. Okay. सिर्फ ओमेगा रह जाना चाहिए उसमें और ट्रांसलेशन खत्म हो जाना चाहिए. Then what will happen? Friction is still acting. गलत क्या है? हमें गलत है. Friction in this case is acting in the forward direction, projected on a horizontal floor with a backward spin, so that its center of mass speed is v0 and its angular velocity is omega naught. Okay. Now, what will be the minimum value of omega naught so that the disk eventually returns back? To return back, So this the- return back, this was Huh. not clear. the idea is कि for returning back, the angular momentum का net value must be in what sense? Opposite. Again, there is only friction acting. Okay. Yes. So Sir. friction force act कर रहा है यहाँ पर. So if the friction force is acting, the torque about the earth fixed point is 0. This point is having a rightward slip, so the friction will act in the backward direction. Okay, friction will act in the backward direction. So to return back, when the body returns back, I can say it will start pure rolling. So अगर ऐसा pure rolling start हो रहा है, मतलब कि the final angular momentum about the point A will be in what direction? R cross V अगर करेंगे तो that is inwards. R cross V is in the downward direction. Okay. R cross V is in the upward. Final angular momentum must be in the plus k direction. Okay. R cross V. Okay. R cross V is in the outward direction Outwards, and I omega is also in the outward direction. Yes, तो sir. इनिशियल एंगुलर मोमेंटम भी फिर किधर होना चाहिए? प्लस के में, तभी कंजर्व कर Plus सकते हैं. K. Now in case of in the translational part, R cos V is in the inward direction and I omega is in the outward direction. So ICM omega must be greater than what? Must be greater than m into v naught into 1 to return back. To return back, the total angular momentum must be in the plus k capital. That is what we have concluded from this. कि अगर वो return back कर रहा है और वो pure roll start किया, तब फिर final angular momentum is in the plus k capital. तो फिर initial भी plus k cap direction में होना चाहिए. So rotation is giving it a plus k cap angular momentum and translation is giving it a minus k cap angular momentum. So I want the total to be in the plus k direction, so I omega must be greater than omega. So it's just a single line answer. So could we equate the time for the respective journeys? The forward journey and the backward journey, time for the backward will be greater than time for the forward. नहीं यार वो Omega से time निकाल के. नहीं यार, टाइम में क्यों जाएंगे? नेट एंगुलर मोमेंटम इज द बेस्ट. एक लाइन में प्रॉब्लम हो रहा है राइट. टाइम तो ज्यादा ही होगा. रिटर्न Yes, जर्नी का तो टाइम विल बी इनफाइनाइट. द बॉडी विल कंटिन्यू टू मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. Yes, sir. सर जब भी रिटर्न करने वाला होगा तब फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? जब मतलब वो डायरेक्शन चेंज करेगा वेलोसिटी अपना. हाँ तो पहले ओमेगा वी को 0 होना होगा तभी बॉडी रिटर्न करेगा. पहले ओमेगा नॉट था ऐसा और वी नॉट ऐसा था ना. ठीक है, तो कुछ देर बाद में ऐसा हो जाना चाहिए. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट लेफ्टवर्ड्स रोटेट कर रहा है, तो फ्रिक्शन इस केस में इज इन द राइटवर्ड डायरेक्शन. सर आप ओमेगा का डायरेक्शन गलत मार्क कर दिए.
हाँ, मैं ओमेगा का डायरेक्शन मार्क कर दिया, ऐसा था ओमेगा का इनिशियल डायरेक्शन, तो कुछ देर बाद में ओमेगा का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, तो मैंने सेम ही रहेगा, v पहले 0 हो गया, तो इस पॉइंट का नेट वेलोसिटी ओमेगा राइटवर्ड्स है, तो इस पॉइंट पे फ्रिक्शन ऐड करेगा लेफ्टवर्ड्स, तो वो उसको वापस लेके आ जाएगा, ठीक है, एंड इट विल फाइनली स्टार्ट प्योर रोलिंग विद v and omega, v equals to omega, this is the journey. Throughout the journey फ्रिक्शन लेफ्टवर्ड्स ही एक्ट कर रहा था, है ना? और एक बार प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया उसके बाद में फ्रिक्शन बिकम जीरो. So since friction is the only force apart from in this case, तो इन टाइप के प्रॉब्लम, इस टाइप के प्रॉब्लम्स में बेस्ट मेथड होता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट फ्रिक्शन. Yes, sir. Yeah. Next. So that's Okay. all, Yeah. sir. Okay. Cool. Next, a few doubts from Devan. I have. Check. Yeah. Just a moment. डाउनलोड करके डिलीट करते हैं, ठीक है. और I have a doubt from Naman. Okay, I'll share it. Naman maybe has sent it out. Uniform disk of radius r, smooth on based on smooth horizontal surface with its plane horizontal and hinged at the circumference. ये hinge point है. Impulse at the hinge is 0. Impulse at the hinge कब 0 होगा, ये तो डिस्कस किया था अपन. Impulse at the hinge कब 0 होता है? When the point O has no tendency to move. Okay, अगर O में tendency of motion आता है तब फिर hinge को एक impulsive reaction force देना होता है to destroy the tendency of motion. Okay, if O is naturally at rest, then what? Then the impulse of the hinge reaction will be 0. See if you're clear with this. So O कब होगा naturally at rest? If O is the instantaneous center, not by force but by choice. If O is the instantaneous center by itself, then it will naturally be at rest, and so the impulse of the hinge reaction will be 0. तो O को IC के लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे? I can just say that impulse P is provided in this direction. So P will be equals to what? P can be written as m into v. ये एक इक्वेशन हो जाएगा. And torque equation about the center of mass क्या हो जाएगा? P into h is equals to ICM into omega. और इस पॉइंट का वेलोसिटी कब 0 होगा? जब ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों आपस में कैंसिल ऑफ हो जाते हैं और नेट वेलोसिटी 0 हो जाता है, तो v इक्वल्स टू ओमेगा. These are the three equations. Okay. पॉइंट ओ में टेंडेंसी नहीं है मूव करने का, एंड सो that is naturally the instantaneous. Yes, sir. Yeah. Okay, next. Yes, Vidisha sent me a few dots. Okay. I'll share it on the screen. Yeah. Question number 6. A block X of mass 0.5 kgs is held by a long massless spring, angle 30 degree, frictionless plane,
The string is on to the uniform cylinder drum of mass 2 kg radius sigma. The drum is given an initial angular velocity such that x starts moving up the incline. X starts moving up the incline. You need to find out the tension during the motion. But it is हो जाना चाहिए यार. I have given it an angular velocity omega naught. तो टेंशन इसके ऊपर ऐसा एक्ट कर रहा है, इसके ऊपर टेंशन इधर है, फ्रिक्शन कुछ है नहीं, तो इसका नेट एक्सेलरेशन हो गया t माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम, और इसके ऊपर टॉर्क हो जाएगा टी इंटू आर इक्वल टू आर अल्फा. तो वहाँ से बस कैलकुलेट कर लेंगे, एक्सेलरेशन को डाउन द इंक्लाइन मार्क करेंगे, बिकॉज ऑफ टेंशन देयर विल बी एन अल्फा इन द एंटी क्लॉकवाइज, द एक्सेलरेशन विल बी डाउन द इंक्लाइन नॉट अप द इंक्लाइन. वो तो धीरे धीरे मोशन स्लो डाउन हो रहा है. टी इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा पहला इक्वेशन, and mg sin theta minus t is equals to ma दूसरा इक्वेशन, and a equals to r alpha for next. तो यहाँ से टेंशन आ जाएगा, and at a time the angular velocity of y is 10 radians per second. Calculate the distance x, distance traveled by x from that instant until it comes to rest. हाँ तो अगर ओमेगा पता है इनिशियल ओमेगा, तो टाइम निकल जाएगा अल्फा से, ओमेगा इक्वल टू अल्फा टी से. तो once you get t, then you can find out the distance traveled, because v पता है. Okay, you can find v of the block from v equals to omega naught into r. So बस s ut half at square. Go through it please. सर यदि इक्वेशंस को सॉल्व करने से ईशा नेगेटिव आ रहा था. ये p क्यों नेगेटिव आएगा? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और अल्फा का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ओमेगा इक्वल्स टू माने डिक्रीज हो रहा है, ओमेगा भी डिक्रीज हो रहा है और लीनियर वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रहा है. लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा दोनों ही डिक्रीज हो रहा है. ठीक है ना? नेगेटिव आने का तो कोई सवाल ही नहीं Yes, आ sir. रहा. ओमेगा का वैल्यू 10 है और अल्फा यहाँ से जो निकाले तो t विल बी ओमेगा बाय अल्फा. नेगेटिव का तो कोई सवाल ही नहीं है. देयर इज नो चांस दैट t विल बी नेगेटिव. ओके, अल्फा इज नेगेटिव. Alpha you can say is negative, time negative no purpose. Fine, next question number 12. ये भी same equation है यार. Solid cylinder of with mass radius, block is hanging vertically, angle is 28.3 degrees. The linear acceleration of the cylinder down the incline and tension on the tip. Same question है. ये एक्सेलरेशन नहीं होगा तो इसका एक्सेलरेशन 2a होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट है, राइट. सिलेंडर का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन पूछ रहा है, तो अल्फा ऐसा हो गया, राइट. सो द इक्वेशंस विल बी व्हाट, f into r minus t into r is equals to I alpha, and mg sin theta minus f minus t is equals to ma, and mg minus t for the block is equals to m into 2. T minus mg is m into 2. बस ये तीन इक्वेशंस हैं. ओके. Yes, sir. Next, a uniform rod of mass and length L pivoted, or initially it is touching the block, which is at rest in the horizontal surface. The rod is given a slight push and it starts rotating about the point O. This causes the block to move forward as shown. Okay. A rod pivoted about point O. हाँ, तो बस about O it is undergoing a fixed axis rotation. Pure rotation हो रहा है about point O rod का. And the rod loses contact when the angle is 30 degrees. तो कॉन्टैक्ट कब लूज करेगा? जब ब्लॉक का वेलोसिटी ज़्यादा हो जाता है रॉड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से. ये ओमेगा इंटू एल है, उसका कंपोनेंट ओमेगा एल कॉस थीटा है, जो भी आएगा. दिस इज 90, तो दिस विल बी एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ओमेगा एल साइन थीटा आ गया.
So when velocity of the block is greater than omega L sin theta, then it loses contact. Greater than or just equal to omega L sin theta. Okay. तो उसके लिए आई कैन से कि ये एंगल 30 डिग्रीज पे लूज कर रहा है कॉन्टैक्ट, मतलब इट हैज लॉस्ट पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम दिस कॉन्फ़िगरेशन एंड दैट हैज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड प्लस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक. So mg delta h will be equals to half I-O omega square plus half mv square. See if you're clear with this. Yes, sir. Okay. और अब बोल रहा है acceleration of the center of mass of the rod निकालना है when it loses contact. Center of mass में एक tangential acceleration होगा और एक centripetal acceleration होगा, ठीक है. तो ओमेगा स्क्वायर आर और आर अल्फा का रिजल्टेंट. सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन विल बी आर अल्फा L/2 अल्फा एंड ओमेगा स्क्वायर L/2 का रिजल्टेंट. ओमेगा अपने को पता है और ये अल्फा निकाल सकते हैं अपन टॉर्क इक्वेशन से. टॉर्क इक्वेशन क्या होगा इस पोजीशन पे mg का टॉर्क होगा ओके, बस mg का टॉर्क होगा बिकॉज इट हैज ऑलरेडी लॉस्ट कॉन्टैक्ट. व्हेन इट लूजेस कॉन्टैक्ट तो उस समय नॉर्मल फोर्स तो जीरो हो जाएगा. ऐसा जो नॉर्मल है दैट विल बिकम जीरो, राइट. तो सिर्फ mg का टॉर्क है तो आई विल गेट अल्फा एंड सो द टोटल एक्सेलरेशन विल बी ओमेगा स्क्वायर L/2 as such plus r alpha as such. Okay. Fine. Next question. Block of mass m and a cylinder of mass 2m are released on a rough incline at 45 degree. The coefficient of friction for all contacting surfaces 0.5. Find the acceleration of the block and the cylinder. Acceleration of the block and the cylinder. Anyone has solved it? Yes. Yes, sir. Okay. 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 Yes. क्या solve करेंगे बताओ दोस्त. So there will be normal between the block and the cylinder. और सर सिलेंडर हाँ बोलो. सिलेंडर पे एक फ्रिक्शन ऊपर लगेगा और एक फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन लगेगा. अच्छा. रिलीज्ड ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन. अच्छा, फ्रिक्शन यहाँ पे ब्लॉक से भी मिलेगा क्योंकि प्रेसिंग है. अगर जो नॉर्मल फोर्स है तो फ्रिक्शन ब्लॉक से भी मिलेगा, ठीक है. एंड वी हैव टू अज्यूम प्योर रोलिंग. तो अगर प्योर रोलिंग हो रहा है तो इफ दिस इज गोइंग डाउन दिस विल हैव एन ओमेगा एज सच. ये पॉइंट का नीचे स्लिपिंग हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द ब्लॉक, सो देयर विल बी अ फ्रिक्शन इन दिस डायरेक्शन एंड देयर विल बी अ फ्रिक्शन इन दिस डायरेक्शन, आई थिंक, है ना. For the block there will be a normal force. सर N1. इस Yes. सर वो डिस्क पे एक नॉर्मल फोर्स भी है हाँ, of course normal force है. अप द इंक्लाइन. Normal force action reaction पे है, right. On the block it is down the incline, on the disc it will be up the incline. Apart from this there will be mg sin theta cos theta, right. And इसका velocity must be same as the velocity of या फिर इसका acceleration must be same as the acceleration of this block. Center of mass का जो acceleration होगा, right. या फिर और कुछ acceleration आएगा बताओ. तो सेम एक्सेलरेशन है. नहीं मतलब what will I equate? Will I equate the linear accelerations or something else? सर दोनों का लीनियर एक्सेलरेशन तो सेम होगा ही. Yes, दोनों का linear acceleration a1 a2 को same होना होगा. Okay. So I can now just write down the force equations, right? Force equation, torque equation. This is accelerating down with a अगर तो फिर I can write down mg sin theta minus n1 minus f2 is m. Okay. And for the block, what equation can we write? mg sin mg theta. sin theta plus n1 Yeah, minus this will be f. 2m. Sorry. Sphere है तो sphere का mass 2m दिया, cylinder का mass 2m दिया हुआ. तो mg sin theta minus इसका फ्रिक्शन f3 मान लेते हैं, राइट. f1 स्फीयर के ऊपर अपवर्ड्स लग रहा है तो उसका रिएक्शन ब्लॉक के ऊपर डाउनवर्ड जाएगा. तो
तो इसके कारण नॉर्मल ऑन द ग्राउंड बढ़ जाएगा, नॉर्मल ऑन द इंक्लाइन प्लेन बढ़ जाएगा, तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बढ़ जाएगा। mg sin theta minus plus n1 minus f3 is equals to m into a. See if you clear this. Okay, और टॉर्क इक्वेशन लिख लेंगे, Yes, sir. f2 into r minus f1 into r is equals to I into alpha, और a equals to r alpha तो है ही of course. Go through it please. And f3 will be mu into n will be mg cos theta और ये फ्रिक्शन. Normal from the ground is mg cos theta plus friction f1. Okay, next. A ball of mass and radius r rolls on the circular path. Its speed at the bottom is v naught. और मेरे को निकालना है force as a function of theta. Its speed at the bottom is v naught. मतलब जब यहाँ पे तो velocity v naught है और pure rolling हो रहा है, तो at a general angle theta उसका क्या speed है वो निकालना है, ठीक है? I can say कि यहाँ पर उसका speed क्या होगा, that can be found. अगर नीचे में स्पीड v नॉट है तो इस पॉइंट पे स्पीड एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं। यहाँ पे v नॉट ओमेगा नॉट है, यहाँ पर v और ओमेगा होगा, तो स्फीयर का टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है 7/10 mv नॉट स्क्वायर, ठीक है, प्लस mg r माइनस r 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 7/10 mv नॉट स्क्वायर। यहाँ से v आ गया, और एक बार v आ गया तो बस बाकी तो इक्वेशन सिंपल ही है। This is moving in a circle, the center of mass of the sphere, so n और mg cos theta का resultant is providing that centripetal acceleration. Yes, sir. mv square v लास्ट वाली इक्वेशन आ जाएगा और डिस्टेंस होगा r माइनस r, तो ये जो सर्कल है उसका रेडियस इज r माइनस r। और नेक्स्ट, uniform rod of mass m and length L rest on a smooth horizontal surface. One end of the rod is struck in the horizontal direction at right angles to the rod. As a result, the rod obtains a velocity v naught. Find the force exerted, force with which one half of the rod will act on the other in the process of motion. Rod of mass and length L, one end is struck in the horizontal direction, right angles to the rod. As a result, the rod obtains a velocity v naught. तो बेसिकली टेंशन एट द मिड पॉइंट निकालना है मेरे ख्याल से, ठीक है? ऐसा कुछ है कि ये रॉड है और ये ऐसा फोर्स है, और बिकॉज ऑफ द फोर्स द सेंटर ऑफ मास गॉट अ वेलोसिटी वी नॉट, एक रोटेशन भी आएगा उसमें, इम्पल्स है नॉट फोर्स, विल बी ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी ऐसे। सी इफ आई क्लियर विद दिस सो फार। क्या इक्वेशंस लिखेंगे, j इक्वल्स टू mv नॉट and j into L by 2 is equals to ml square by 12 into omega naught. Force with which one half of the rod acts, force with which one half of the rod will act on the other half in the process of the motion. तो अगर सिर्फ लोअर हाफ का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या कर रहा होगा, वो भी सर्कल में घूम रहा होगा, लोअर हाफ ऑफ द बॉडी। ओके, the tension over here is providing that centripetal acceleration to the lower half of the body. तो t को क्या लिख सकते हैं, t equals to m into ओमेगा स्क्वायर r, r कितना होगा L/4, तो ओमेगा अपन को पता है तो वहां से आ जाएगा आंसर। मास m/2 होगा, आधा रॉड है, देखो समझ में आएगा नहीं? हेलो, हाँ sir. ओके नेक्स्ट। पूरा का पूरा पेज डाउट है।
semicircular track, cylinder moves on sufficient friction. Calculate the velocity of the axis of the cylinder when the velocity of and the velocity of the block. ये तो यार मोमेंटम कंजर्वेशन है और एनर्जी कंजर्वेशन है, कुछ भी नहीं है इसमें. दिस स्टैंडर्ड मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन. अपन जो The प्रॉब्लम्स देखे, velocity of axis. मतलब वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, और क्या. ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन, और प्योर रोलिंग लेना होगा तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर वाला चीज रहेगा इसमें. ठीक है ना, और तो यही करना है. और रेडियस दिया हुआ है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgr माइनस आर होगा. हाफ m1 v1 कैपिटल एन कैपिटल वी स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल एन स्मॉल वी स्क्वायर. स्मॉल वी और कैपिटल वी निकालना है. एक ही इक्वेशन और एक मोमेंटम इक्वेशन हो जाएगा. देखो समझ में आ रहा है. सर तो इससे v dash is equals to 2 भी आना चाहिए ना, मतलब ट्वाइस होना चाहिए ना एक का. मास इज हाफ kg दिया हुआ है. इक्वल्स टू 2v. मोमेंटम कंजर्व करेंगे अगर स्ट्रिंग इज बर्न. Now there is no slipping. नो स्लिप कंडीशन है ना. नो स्लिप कंडीशन अगर दिया हुआ है, ये अगर स्मॉल भी है तो ये कैपिटल भी है. v इसका एक्चुअल वेलोसिटी, तो v माइनस ओमेगा आर हो जाएगा इस पॉइंट का वेलोसिटी, विच शुड बी इक्वल्स टू v. एंड हाँ, मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन तो लिखे रहते हैं. फ्लोर स्मूथ है और फ्रिक्शन इंटरनल है ना. एम वी इक्वल्स टू एम वी तो लिख ही सकते हैं. और v और v में रिलेशन होगा v माइनस ओमेगा. ये ओमेगा अगर ऐसा है तो ओमेगा आर माइनस वी विल बी इक्वल्स टू कैपिटल v. ये इक्वेशन आएगा नो स्लिप कंडीशन का. गुड गुड. सर मोमेंटम कंजर्वेशन से आना चाहिए m हाफ है तो और कैपिटल M 1 है तो v इक्वल्स टू 2v dash. हाँ हाँ. बट वैसा आंसर आंसर क्या नहीं दिया है. है? आंसर 1.5 और 2 है. अच्छा. सेमी सर्कुलर ट्रैक, mass of the block m is 1 kg, rest over a smooth horizontal floor, and the thread. When the thread is burned, the cylinder starts moving down. Sufficient friction is leading the cylinder under track, so the cylinder does not fail. Calculate the velocity of the axis of the cylinder and the velocity of the block when it reaches the bottom of the track. ये मोमेंटम तो कंजर्व होगा. एक बार तो अपना सॉल्यूशन भेजना, मेरे हिसाब से तो सही आना चाहिए इस तीनों इक्वेशन से. ठीक है. नेक्स्ट. थर्टी वन. 31. Show that the rod is held at an angle theta and released. Its lower end will not slip if the friction coefficient between the rod and the ground is greater than this value. ऐसा कॉन्फ़िगरेशन में रिलीज किए और तो ये पॉइंट बेसिकली हिंज पॉइंट जैसा काम करना चाहिए. इसके अलावा क्या क्या फोर्स है? डाउनवर्ड नॉर्मल अप्रोच. ठीक है. एंड दिस पॉइंट विल हैव अ टेंडेंसी टू स्लाइड लेफ्टवर्ड, सो द फ्रिक्शन विल एक्ट इन द राइटवर्ड डायरेक्शन.
तो जब फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट सबसे मैक्सिमम है, दैट इज द पॉइंट आई कैन से, है ना। ये जनरल एंगल थीटा पे आई कैन जस्ट राइट डाउन द इक्वेशन और इस पॉइंट को हिंज मान सकते हैं। तो फ्रिक्शन एट एन एंगल थीटा मुझे पता चल जाएगा। द हिंज रिएक्शन जो अलोंग एक्स मिल रहा है, दैट इज बेसिकली द फ्रिक्शन ओवर हियर। और the center of mass will have two accelerations, a tangential and a centripetal, एक AT और एक AC. mg minus n will be may and friction is max. इसमें एक्चुअली फिर कैलकुलस लगाना होगा क्योंकि यू हैव टू फाइंड आउट एट व्हाट एंगल थीटा द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन इज मैक्सिमम, ठीक है ना। तो वो वाला इंस्टेंट पे म्यू एन के बराबर होना चाहिए, मतलब कैलकुलस का वो मैक्सिमम मिनिमा प्रॉब्ली यू विल हैव टू अप्लाई। इस इंस्टेंट पे अगर देखते हैं तो हिंज रिएक्शन आई कैन कैलकुलेट mg माइनस आर वाई इज इक्वल्स टू may, और यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो जीरो है इनिशियली, सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो आई कैन से दैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ay कैन बी रिटन एज L/2 अल्फा का वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज 80 एंड दिस इज द कंपोनेंट। ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ है 90 minus theta, this is theta, so 80 cos theta। ये एक इक्वेशन आ गया और दूसरा इक्वेशन है फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू m into ax and ax can be written as L/2 sin alpha, L/2 alpha into sin theta। तो यहाँ से f equals to mu into n करके you will have to find out mu, okay। Yes, sir. Okay, next 36 uniform rod of mass is released in the horizontal position 32 भी for था। what 32, okay, 32, 1/4 of the length is on the table, thread is burned, find the angle at which the rod is just about to slide। ऐसा कोई एंगल पे बॉडी जब स्लाइड करने वाला है, आई कैन से कि mg sin theta of the body must exceed the maximum friction available, और ये नॉर्मल फोर्स है नहीं, mg cos theta। और अभी तक बॉडी इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा था, आई कैन फाइंड अल्फा। तो सेंटर ऑफ मास का दोनों एक्सेलरेशन मुझे पता चल गया, टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो f और mg sin थीटा मिलके क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन f माइनस mg sin थीटा इज इक्वल्स टू m into ac एंड mg cos थीटा माइनस नॉर्मल इज इक्वल्स टू m into at, राइट। ये अलोंग द रॉड हो गया, ये परपेंडिकुलर टू द रॉड हो गया, और तीसरा जो इक्वेशन है वो टॉर्क इक्वेशन हो जाएगा। टॉर्क इक्वेशन आएगा मेरे ख्याल से सिर्फ mg cos थीटा का, mg cos थीटा into L/4 is equals to I alpha, I about that point C, and AT को R alpha लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर, देखो समझ में आएगा। और एक एनर्जी इक्वेशन लगेगा ओमेगा निकालने के लिए, यहाँ से AT आ जाएगा R alpha से, और AC is ओमेगा स्क्वायर आर, तो उसके लिए the loss in gravitational potential energy mg delta h is equals to half IC ओमेगा स्क्वायर, तो वहाँ से AC आ जाएगा, देखो समझ में आएगा। फिर फ्रिक्शन को म्यू इनटू एन करना, ओके Yes, sir. फाइन। 36 determine the corresponding angular acceleration
For what value of x the angular acceleration is maximum? Rod is released. For what value of x? ये तो L/2 होना चाहिए, जितना दूर होगा उतना अच्छा बात है सेंटर ऑफ मास, है ना? For what value of x the angular acceleration, moment of inertia भी बढ़ रहा है जितना दूर लेके जाएंगे. Okay. तो mg into x will be equals to ml square by 12 plus mx square into alpha. ओके, तो अब अल्फा को मैक्सिमाइज करना है तो डी अल्फा बाई डी एक्स को जीरो करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा. ओके, आई गेट द एक्सप्रेशन फॉर अल्फा एज जी एक्स डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, so we can write it as L by x, L square by 12 upon x plus x. This is the denominator. तो डिनोमिनेटर को अगर मिनिमाइज कर देंगे तो एक्सप्रेशन मैक्सिमाइज हो जाएगा. हेलो, यस सर. तो डिनोमिनेटर का मिनिमम वैल्यू निकालना है अपन को. तो इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करना होगा. ठीक है ना, कोई भी अगर फंक्शन होता है y इन टर्म्स ऑफ x, तो अगर मिनिमम वैल्यू निकालना होता है तो वी डिफरेंशिएट इट एंड वी इक्वेट इट टू जीरो. तो यहाँ से जो x का वैल्यू आता है x नॉट, दैट इज द वैल्यू फॉर विच y विल बी मिनिमम. तो y का मिनिमम वैल्यू इज रिटन एज व्हाट? y का मिनिमम वैल्यू इज रिटन एज f ऑफ x नॉट. तो यहाँ से यू हैव टू डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर एंड इक्वेट इट टू जीरो. इधर से निकल जाएगा क्या वैल्यू ऑफ x के लिए अल्फा का वैल्यू मैक्सिमम होगा. देखो समझ में आया नहीं? मुझे डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है तो अल्फा मैक्सिमाइज हो जाएगा. ओके, यस सर. फाइन. सर ऑन. Okay, let's go to Devansh ka doubts. Last set of doubts, I think. Yeah. Find the minimum height of the obstacle so that the sphere can stay in equilibrium. Sphere को equilibrium में रहना है. तो mg sin थीटा और mg cos थीटा का टॉर्क बैलेंस होना चाहिए अबाउट दिस पॉइंट. देखो समझ में आ रहा है? यस सर. या फिर बोल सकते हैं कि mg मस्ट पास थ्रू दिस पॉइंट, क्योंकि नॉर्मल और फ्रिक्शन तो इस पॉइंट से पास कर रहे हैं. मिनिमम हाइट चाहिए तो यहाँ से नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाना चाहिए. जस्ट बॉडी इस पॉइंट के अबाउट टॉपल करने वाला है. मिनिमम हाइट चाहिए तो इट कैन जस्ट स्टे इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, अगर ये हाइट h/2 हुआ तो आराम, माने r के बराबर हुआ तो आराम से इक्विलिब्रियम में रहेगा. h का वैल्यू 2r हुआ या r हुआ तो आराम से इक्विलिब्रियम में रहेगा बॉडी. मेरे को मिनिमम हाइट चाहिए ताकि इक्विलिब्रियम में रहे, तो बॉडी जस्ट टॉपल करने वाला हो. मतलब यहाँ से कांटेक्ट हो गया तो इधर से नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाना चाहिए. ठीक है, तो mg sin थीटा और mg cos थीटा का टॉर्क को यू कैन इक्वेट. ओके, यस सर. या फिर यू कैन आर्ग्यू दैट द सेंटर ऑफ मास मस्ट बी राइट अबव द पॉइंट ऑफ टॉपलिंग. ये वाला आइडिया भी अपन डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर 5 में. ठीक है, सेंटर ऑफ मास मस्ट बी राइट अबव द पॉइंट ऑफ टॉपलिंग. ये वाला आइडिया भी यूज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट. ये कौन सा क्वेश्चन है? संगीत सर. यस सर. Okay. Rod of length AB, string B breaks if the horizontal acceleration of the center of mass is ax and the vertical acceleration is ay and angular acceleration is alpha. तो ये स्ट्रिंग काट देंगे तो बॉडी ऐसा जाएगा, ऐसा कुछ करेगा है ना.
तो सेंटर ऑफ मास में एक लेफ्टवर्ड एक्सेलरेशन होगा, एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा और एक रोटेशन होगा एंटी क्लॉकवाइज में से। देखो यहाँ तक समझ में आया नहीं? यस सर। तो इस पॉइंट का टोटल एक्सेलरेशन क्या क्या आ गया? ax ay तो आ गया सेंटर ऑफ मास के कारण, और r अल्फा आ जाएगा, l/2 अल्फा आ जाएगा रोटेशन के कारण। ठीक है, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ए मस्ट बी व्हाट? मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग अलोंग द स्ट्रिंग, तो एक्सेलरेशन 0 होना होगा। देखो समझ में आ रहा है नहीं? तो ax का कंपोनेंट ax cos 30 और l/2 cos 60, l/2 अल्फा cos 60 मतलब हाफ हो गया, शुड बी इक्वल्स टू ay का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, तो ये भी आ जाएगा ay cos 60। यहाँ से आ जाएगा मेरे ख्याल से रिलेशन, है ना? यस। ओके, नेक्स्ट। बहुत डेंजरस सवाल है देखने में। Disk of mass m radius r is placed on a smooth horizontal surface. An ideal string passes through the disk such that one end of the string is attached to a mass m and the other end is being pulled by a force F. बहुत बढ़िया बात है। Circumference of the disk is sufficiently rough so that the string does not slip. Find the acceleration of the small one. Anyone? बताओ। सर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। लटा क्या सर, क्या? क्वेश्चन नहीं समझ में आया। वेरी गुड। तो बेसिकली स्लिप नहीं हो रहा है डिस्क में, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो अल्फा है, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन आर अल्फा हो गया, और वो किसके बराबर होना चाहिए? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल के बराबर। देखो यहाँ तक समझ में आया नहीं? ए और आर अल्फा बराबर होना चाहिए, तभी वी कैन से कि देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द डिस्क। ये तो दिया हुआ है, circumference is sufficiently rough so that there is no slip, the string does not slip over it. हेलो, यस सर। ठीक है। अच्छा, डिस्क भी राइटवर्ड्स जाएगा क्या? टेंशन इसके ऊपर ऐसा है, इसके ऊपर ऐसा है, तो 81 मान लो या 80 मान लो, डिस्क का भी मास दिया हुआ है, ओ तो डिस्क भी राइट में मूव करेगा। बहुत बढ़िया बात है। तो डिस्क राइट में A1 से मूव कर रहा है सपोज, और ये ब्लॉक पार्टिकल A2 से मूव कर रहा है, तो इस, और ये अल्फा से रोटेट कर रहा है, तो इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? A1 माइनस आर अल्फा, या फिर आर अल्फा माइनस A1 लिख लें अगर लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में सोच रहे हैं। वो किसके बराबर होना चाहिए? A2। बस इतना ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं। सर ये नहीं समझ आया। हाँ, ये समझ में आने लायक क्वेश्चन भी नहीं है, ये सब बकवास क्वेश्चन है। कहाँ से आ जाते हैं सब क्वेश्चन, पता नहीं। F plus T is equals to M into A1, translation motion of the disk, F into R minus T into R is equals to I into alpha of the disk, ठीक है, और T equals to M into A2 for the particle। और अब एक नो स्लिप कंडीशन, सिंपल सा बात है। डिस्क को देखो, डिस्क में एक लीनियर एक्सेलरेशन आ गया A1 और एक एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया अल्फा, और वो कनेक्ट हुआ है एक डिस्क से, एक स्ट्रिंग से जो लेफ्ट में मूव कर रहा है, कितना स्पीड से? A2 से मूव कर रहा है, बस। तो नो स्लिप के लिए ये दो पॉइंट जो कॉन्टैक्ट में, वो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो आर अल्फा माइनस A1 इज इक्वल टू 8। ट्राई करना दोस्त, देख के बताना आंसर आया कि नहीं। आंसर आ जाएगा तो खुशी होगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, गुड। आंसर तो सुंदर ही है काफी, ठीक है। होमोजेनियस रॉड ऑफ लेंथ L, eta x and mass m is lying on a smooth horizontal floor. A bullet of mass m hits the rod at a distance x from the middle of the rod. अच्छा, at a velocity v0 and comes to rest.
ठीक है. If the velocity of the farther end of the rod just after the impact is in the opposite direction of v naught, is in the opposite direction of v naught, then you have to find. ये क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया होगा जनता को. ऐसा एक रॉड है, वेरिएबल मास है, पहला चीज तो ये L is eta into x, तो जितना राइट में मूव करे उतना डेंसिटी बढ़ रहा है रॉड का. तो आई कैन से कि सेंटर ऑफ मास इज समवेयर ओवर हियर. दैट इज द फर्स्ट थिंग. Okay, this is the center of mass of the rod. Now what? The next thing that is given is a bullet of mass m hits the rod at distance x from the middle of the rod. ये हो गया geometric center of the rod. और bullet ऐसा hit किया with the velocity v naught at a distance x from the geometric center and comes to rest. So bullet comes to rest if the velocity of the farther end of the rod, farther end अब कौन सा हो गया, just after the impact is in opposite direction of v naught. Farther end लेफ्ट वाला एंड का तो वेलोसिटी ऐसा ही होगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो नहीं सकता. इस वाला एंड का वेलोसिटी हो सकता है ऑपोजिट डायरेक्शन. देखो समझ में आया या नहीं यहाँ तक कहानी. यस सर यूनिफॉर्म रॉड नहीं है क्या? यूनिफॉर्म रॉड नहीं, यही तो दुख है. सर लेंथ सर हमको लगा कि वो लेंथ इक्वल टू ईटा एक्स दिया है. हाँ वही. अच्छा लेंथ ईटा एट दिया हुआ है, तब तो बहुत क्वेश्चन आसान हो गया यार. तब तो मस्त हो गया, तब तो जीवन में बहुत शांति, तब कुछ नहीं. ठीक है, भूल जा. सर लेकिन ईटा का वैल्यू लेस देन 3 दिया, तो ईटा तो कुछ भी हो सकता है. नहीं वो ठीक है, रॉड यूनिफॉर्म है ना. मैं सोचा था मास इज गिवन एज ईटा इनटू एक्स, इसलिए मेरे को वो लग रहा था कि बहुत टफ हो गया क्वेश्चन. ठीक है, कुछ नहीं. एक्स सर एक्स तो वेरिएबल है ना. हाँ एक्स वेरिएबल है, एक्स कुछ भी हो सकता है. वही नहीं मतलब एक्स पे आके स्ट्राइक किया, मैं अज्यूम किया एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें तो. और ये बुलेट आके इसके पास रुक गया, और ये वाला जो पॉइंट है ये उल्टा वेलोसिटी, उल्टा डायरेक्शन में मूव करना चाहिए. तो ये कब उल्टा डायरेक्शन में मूव करेगा, जब ओमेगा आर का वैल्यू ज़्यादा वो हो जाएगा, राइट, डोमिनेटिंग अबव वी. तो ये v से चालू किया और ये ओमेगा से ऐसा घूमना चालू किया. ये ओमेगा L/2 मस्ट बी ग्रेटर देन v. बस ठीक है, समझ में आ रहा है. फिर ओमेगा L/2 ग्रेटर देन v, तभी ये वाला पॉइंट का नेट वेलोसिटी लेफ्ट हो जाएगा. इस रॉड में दो वेलोसिटीज आए ना, एक तो ट्रांसलेशन के कारण सब पॉइंट का v वेलोसिटी, और एक रोटेशन के कारण ओमेगा r वेलोसिटी आएगा. लेफ्ट वाले पार्टिकल्स का अपवर्ड्स और राइट वाले पार्टिकल्स का डाउनवर्ड्स. यस तो नेट वेलोसिटी नीचे आने के लिए ओमेगा L/2 ज़्यादा होना चाहिए v के अगेंस्ट. समझ में आ रहा है. इसमें तो ये हो गया ना ओमेगा L/2 माइनस v इक्वल्स टू v नॉट. v नॉट कहाँ से आ गया? v नॉट तो इस रॉड, इस पार्टिकल का वेलोसिटी था दोस्त. सर लेकिन बोला कि फार्दर एंड का वेलोसिटी v नॉट हो गया. फार्दर एंड का वेलोसिटी मस्ट बी इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट ऑफ v नॉट. ओह क्या वैल्यू है उससे मतलब नहीं, डायरेक्शन बस उल्टा होना चाहिए. तो बस ओमेगा L/2 मस्ट बी ग्रेटर देन, बस इतना ही कंडीशन लेके आना. तो ओमेगा निकल जाएगा एंगुलर मोमेंटम वाला इक्वेशन से, और v निकल जाएगा लीनियर मोमेंटम वाला इक्वेशन से. हो जाएगा या नहीं? यस सर, लेकिन सर इसमें ईटा लेस देन 3 दिया, तो अगर ईटा इक्वल्स टू 1 हुआ तो कुछ और ही हो जाएगा. फिर वो रॉड के एकदम उधर लगेगा, मतलब रॉड के बाहर ही लग जाएगा फिर. हाँ ये भी बहुत दुख का बात है. ईटा इज लेस देन 3. जो इससे इक्वेशन आएगा वही, मतलब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं. mv0 इज द इनिशियल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम हो गया m into v, और एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन होगा mv0x, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो गया कितना, mL/12 into ओमेगा. और अब अपना कंडीशन है कि v ओमेगा L/2 मस्ट बी ग्रेटर देन. तो यहाँ से ओमेगा L/2 क्या आ रहा है, mv0x into 6 by capital N into L. ये इंटू 3 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू ओमेगा L/2.
ठीक है ना? हेलो, यस सर। तो बस अब ओमेगा एल बाई टू ग्रेटर देन वी नॉट लगाना है, उतना ज़्यादा सोचना नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओमेगा एल बाई टू ग्रेटर देन वी, ओमेगा एल बाई टू का वैल्यू ये आया और वी का वैल्यू एम वी नॉट बाई एम है, तो वो कैंसिल ऑफ हो जाएगा। आई गेट 6x बाई एल ग्रेटर देन 1। अभी भी नहीं आएगा। एल इज ईटा इंटू एक्स, ईटा लेस देन 6। आंसर क्या दिया हुआ है? ईटा लेस देन 3 दिया था सर। अच्छा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया था। एम वी नॉट एक्स इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, पार्टिकल पे स्टॉप हो गया, आई इंटू ओमेगा। ठीक ही तो लिखा है यार एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन। नहीं सर, ईटा लेस देन 6 दी। हाँ बेशरम लड़के, ठीक है चल। और बताओ। 87, बहुत लंबा क्वेश्चन है। डायग्राम और भी खतरनाक है। A disk of radius r 0.1 meters, it is rolled, but इस टाइप का क्वेश्चन अपन किए थे यार, याद है? सही समझ में नहीं आया पी का कैसे हुआ। अपन तो सिर्फ वो किए थे कि कितना स्पीड से दे ताकि ये गेम चलता रहे। यहाँ पे एक बंदा को खड़ा कर रहे थे और उसको बोले कि कितना स्पीड से थ्रो करे कि घूम के पार्टिकल उसके पास ही आ जाए। वैसा क्वेश्चन अपन किए थे इसमें मेरे ख्याल से। हाँ, मोमेंटम वगैरह सर्कुलर मोशन नहीं है कोई। ओके, यस सर। सर लेकिन इसमें जो पी का हाँ वेलोसिटी का स्टेटमेंट दिया ना वो समझ में नहीं आया। disk of radius r is rolled from the point A on the track as shown. The part AB is a semicircular track in a vertical plane. Disk rolls, leaves contact at the highest point, flying through the air. It strikes the ground at a point C. The velocity of the center of mass of the disk makes an angle 30 degree at the time of striking. At the same instant, the velocity of the topmost point P is found to be 6 meters per second. हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया दोस्तों? सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी दिया हुआ है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो बस गोला में घूम रहा है, तो इस पॉइंट का नेट वेलोसिटी क्या होगा? वी ऐसा और ओमेगा आर ऐसा का रिजल्ट है, और ये 6 मीटर पर सेकेंड से। हेलो, यस सर। वीपी स्क्वायर, वीपी का रिजल्टेंट नहीं लिखना था क्या? वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर रिजल्टेंट वेलोसिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, दैट इज यस 6। सर। बस यही है। ओके, ओमेगा यहाँ पे जो था बस वो उतना ही ओमेगा रह जाएगा ना बॉडी में। उसके बाद तो सिर्फ वी चेंज हो रहा है, वीसीएम चेंज हो रहा है, ओमेगा तो कांस्टेंट है एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट। Two small spheres, mass 1 kg, string of length A, natural length 2.4 meters. अच्छा, the system is placed on a horizontal surface. Velocity v naught दिया हुआ है. Maximum elongation in the spring is found to be 0.4 meters. Maximum elongation in the spring. तो सी फ्रेम से कर लेते हैं। Vx आ जाएगा v नॉट बाई 2, Vy आ जाएगा v नॉट बाई 2, ठीक है ना? तो सी फ्रेम में इसका वेलोसिटी v नॉट बाई 2 हो जाएगा और बाया में वेलोसिटी आ जाएगा v नॉट बाई 2। एंड दूसरा पार्टिकल में v नॉट बाई 2 राइटवर्ड्स हो गया और v नॉट बाई 2 डाउनवर्ड्स हो गया। यस सर। सी फ्रेम से ही तो करते हैं यार ये सब मैक्सिमम इलोंगेशन वाले प्रॉब्लम्स। हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर वाला टाइप का जो इक्वेशन होता है वही तो करना। नेक्स्ट, ओके सर। rod of mass m length 6r is pivoted at its center. दो डिस्क है of mass m and 2m rotating as shown in the figure. The system is released from the horizontal portion. ये क्या क्वेश्चन है?
तो the ये system हो is- गया था उसके बाद। बता कैसे किया? सो ये हॉरिजॉन्टल है तो वो उसके अबाउट वही करना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ही करना है ग्राउंड के अबाउट शायद। ग्राउंड के अबाउट तो हॉरिजॉन्टल बोला था ना। नहीं, बट hinged है, is pivoted at its center P, rotating in a vertical plane. ये रोटेट कर रहा है वर्टिकल प्लेन में रॉड भी। दो डिस्क है, एक मास 2m का और एक मास m का, ए एंड बी। तो ये इस कॉन्फ़िगरेशन से बेसिकली इस कॉन्फ़िगरेशन में आएगा। मेरे समझ में आ रहा है? नहीं सर, नहीं समझ में आया। ये मास m है, ये मास 2m है। जब ऐसा कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा तो इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा ये पूछा है। ठीक है, तो डिस्क का इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 2 ओमेगा नॉट और ओमेगा नॉट था। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट भी पता है मेरे को, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2, है ना? हेलो, यस सर। मतलब r क्रॉस MVCM तो है नहीं, ये वाला सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस डिस्क इज नॉट हैविंग एनी वेलोसिटी, दिस इज आल्सो नॉट हैविंग एनी वेलोसिटी, तो इट इज जस्ट ICM इनटू ओमेगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट P इज व्हाट, IA ओमेगा A प्लस IB ओमेगा B। वेक्टोरिकली करना होगा, ओमेगा मेरे ख्याल से उल्टा डायरेक्शन में है तो माइनस आएगा, कैंसिल ऑफ हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो कहाँ से आएगा? I सेम सर थोड़ी m है। इंटू 2। अच्छा, मास m और अच्छा 2m सॉरी है, सर। मास m और 2m है, तो r स्क्वायर इंटू ओमेगा हो सकता है कैंसिल ऑफ हो जाए, हो सकता है कैंसिल ऑफ हो जाए। ठीक है, जो भी है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे और फाइनल एंगुलर मोमेंटम के लिए फाइनली ये ओमेगा से घूम रहा है तो दिस पॉइंट विल हैव अ वेलोसिटी ऑफ इट्स ओन, ओमेगा इनटू L/2। दिस विल हैव अ वेलोसिटी ऑफ इट्स ओन, ओमेगा इनटू L/2। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम में रॉड का एंगुलर मोमेंटम प्लस दोनों डिस्क का एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस MVR। फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट P विल बी I of the rod into omega प्लस IA ओमेगा A जो उसका था प्लस MVR, ओके, प्लस IB ओमेगा B प्लस MVBR। बेसिकली है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन। यस सर। कितना क्वेश्चन सॉल्व करा है? The semicircular disc of radius r, mass m is pulled with a force F. Coefficient of friction is इतना यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो बस वही वो सेंटर ऑफ मास वाला फंडा होगा, है ना? सर को डायग्राम कैसे दिया वही कंफ्यूज कर दिया। सेमी सर्कुलर डिस्क है यार, तो ये 4r/3π होता है उसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना? और ये नॉर्मल रिएक्शन है यहाँ से पास कर रहे हैं, और एक फ्रिक्शन है और एक एक्सटर्नल फोर्स है। ये तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट टॉर्क में करके जीरो करने से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना? ओके सर। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो आई कैन से दैट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है ना? एक mg का भी टॉर्क होगा, mg भी है ना, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, एक mg होगा। तो बेस्ट होगा कि इस पॉइंट के अबाउट मैं क्या करूं, टॉर्क इक्वेट कर दूं, टॉर्क ऑफ व्हाट, फोर्स एंड टॉर्क ऑफ m, ताकि नॉर्मल और फ्रिक्शन का कुछ झमेला ही नहीं रहे। टॉर्क ऑफ F इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ mg लगा दूं बस। यस ये तो अभी सॉल्व किए थे 18 नंबर। हाँ सर। ओके, और ये 416 बस देख लेते हैं। रिंग ऑफ मास m रेडियस r by 4 rolls inside a hoop, normal reaction becomes zero at the highest point. The friction in the hoop is sufficient to ensure pure rolling, giving the angular velocity. Find the angular velocity of the ring in radians per seconds. Ring of mass m and radius r by 4 rolls inside a fixed hoop of radius r. ठीक है, such that the highest point of the hoop, the highest point of its trajectory, the normal reaction becomes zero.
हाँ तो ये तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो mg must provide the necessary centripetal acceleration. The friction on the hoop is sufficient to ensure pure rolling. Find the angular velocity of the ring. कहाँ पर? Find the angular velocity of the ring in radians per seconds. इनिशियल भी होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने बेसिकली ये वही क्वेश्चन है तुम्हारा जो बॉडी लूजिंग कॉन्टैक्ट का, ठीक है ना। अंदर में अगर होता है तो पार्टिकल को वेलोसिटी रूट 5 g देते तो इट जस्ट रीचेस द टॉप मोस्ट पॉइंट विद रूट g वेलोसिटी। तो वो वाला ही क्वेश्चन है, जस्ट दैट यहाँ पे रोलिंग कंसिडर करना होगा इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग। ओके, तो नॉर्मल जीरो हो गया, मतलब mg इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, और r हो जाएगा तुम्हारा ये वाला लेंथ r माइनस r/4। तो यहाँ से v आ जाएगा, फिर ओमेगा निकाल लो और फिर एनर्जी कंजर्व कर लो, ठीक है। ओके सर। फाइन v डैश टर्न ओमेगा डैश। ठीक है यार, अभी इतने ही रखते हैं, राइट। टुमारो विल डिस्कस फ्लूइड मैकेनिक्स। आई होप यू विल वॉच द वीडियो लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर, जो लेक्चर 1 जो है वो कंप्लीट करो, सो दैट वी कैन एडवांस। बाय बाय, सी।